Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss topic induction. So firstly we will see about the induction, definition of the induction, then the types, and then we will continue in the details of the primary embryonic induction and some work done by the Hans Spearman. So firstly I am continuing with the definition of the induction. सो फर्स्टली डेफिनेशन को एक मैं सिंपल वे में आपको पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव टू ग्रुप ऑफ सेल्स. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ द सेल्स. इसको मैं G2 लिख देती हूँ. इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके G1 है, मीन्स जो आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल है, दिस विल प्रोड्यूस सम सिग्नल्स. ठीक है, ये कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा and these signals they can be in the form of some chemicals. ठीक है, कुछ केमिकल के फॉर्म में भी ये सिग्नल्स हो सकते हैं. and now these signals or these chemicals they will determine the fate of the G2 cells. ठीक है, ये जो G2 वाले हैं इनकी जो भी फेट है कि इन्होंने फर्दर फ्यूचर में क्या बनाना है, all depends on the signals or the chemicals produced by the first group of the cell. Now this process where the signals and the chemicals induces another group of cells to decide their fate is called as the induction. ठीक है, सिंपली वर्ड जैसे इंड्यूस वर्ड होता है, इंड्यूस करना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना. ठीक है, सेम वे यहाँ पे हो रहा है कि G1 से जो भी उनकी सिक्रीशंस आ रही हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली helping G2 to decide their fate. And this entire process is called as the induction. तो ये आपका एक सिंपल वे में मैंने पहले आपको डेफिनेशन डिस्क्राइब कर दी है that what is induction. Now we will see the definition. Okay, so it is the process by which one group of cells produces a signal that determines the fate of the second group of cells. Right, यही अभी मैंने आपको बता दिया. Now next is एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, राइट. एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या है, सेम डेफिनेशन रहेगी. द डेफिनेशन विल बी द सेम जो अभी हमने इंडक्शन की डेफिनेशन की, बट द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्निक. ठीक है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, उस टाइम पे जो इंडक्शन है वी कॉल देम एज द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. तो क्या डेफिनेशन रहेगी कि जब भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उनके कुछ सेल्स, ठीक है, अगेन सम फर्स्ट ग्रुप ऑफ द सेल्स, these cells releases some chemicals or they will give some signals and they basically stimulate second group of the cells. And now under the effect of these chemicals or the signals, this second group of the cells, they start differentiating and they will form a particular organ or the tissue जो ऑलरेडी किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द केमिकल्स basically secreted by the first group of the cells, right. So this process is called as the embryonic induction. The definition of induction will be remain same, just we will add that this process occurs during the embryogenesis, that is the formation of the embryo. Now firstly we will see the definition for this. So here we are. During embryogenesis of multicellular organisms, some cells are induced to differentiate into specific organ or the tissue by the presence of other cells or their product. Product क्या है यहाँ पे? Their signals or their chemicals. And this process of inducement during the embryogenesis is called as simply the embryonic induction. Right? इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक वी कैन से दैट दिस इज अ मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट, राइट, जहाँ पे क्या हो रहा है, वन एम्ब्रियोनिक टिश्यू ट्रांसमिट्स अ केमिकल स्टिमुलस that influence the another embryonic part to produce a specific structure. So this is the embryonic induction, जिसको हम दो तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं. Now next is
the three basic terms which are involved in the embryonic induction. So first term is the inducer. ठीक है, inducer का मतलब क्या है? These are the tissue that produces a signal. ठीक है, जो हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं ना, that produces some signals or they will give some chemicals. This is called as the inducer. ठीक है, या फिर हम जो सिग्नल्स हैं या जो केमिकल्स है जिनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं या जो फेट डिसाइड हो रहा है, उनको भी हम एज अ इंड्यूसर बोल सकते हैं. सो वी कैन यूज द टर्म इंड्यूसर इन बोथ वेज. वी कैन यूज देम फॉर द प्राइमरी सेल्स विच responsible for inducing the another cells, or we can also use this term for the signals or for the chemicals that are basically responsible for change in the cellular behavior of other tissue or help in the deciding the fate of other tissue. Now next है आपका term responder. Responder means the tissue being induced, यानी कि जो G2 cell है, because they are responding in result of these signals or the chemicals, so this G2 they are called as the responder. Then third term is the competence. Competence means the ability to respond to a specific inductive signal. Now next we will see about the primary embryonic induction. So just before that we will see some more terms, right? जो ये आपका embryonic induction है, this embryonic induction is further divided into the two categories. ठीक है, इस embryonic induction को हम दो categories में divide कर देते हैं. First category is the primary embryonic induction. This is your first, that is the primary embryonic induction. And दूसरी तरफ आपका आ जाएगा, that is the secondary embryonic induction. इस तरह से हम इसे लिख देंगे. ठीक है, जो आपका प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, इट इज द टिश्यू इंट्रैक्शन इन द early embryogenesis that generates the neural tube. यानी कि जो आपका प्राइमरी इंडक्शन है, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द जनरेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, राइट? So then we will see that how this neural tube leads to the formation of all the nervous system associated structure. तो इसमें हम सारे वही tissue interactions पढ़ते हैं during the embryogenesis जो further हमें neural tube formation में help करते हैं, right? Then दूसरी तरफ आपका आता है secondary. Secondary में हम directly सेकेंडरी में हम डायरेक्टली बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस tissues and organs. So here we will see that we will directly study about the development of the organs and about the tissues. So this is the main difference between the two. इसके अलावा जो आपका प्राइमरी इंडक्शन है, इसमें मेन रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब. And here this formation of the neural tube, it is further influenced by the dorsal lip. ठीक है, जो dorsal lip formation होती है ड्यूरिंग द एम्फीबियन एक्सिस फॉर्मेशन हम देखते हैं, गैस्ट्रुलेशन के टाइम हम देखते हैं कि डोर्सल लिप बनता है. सो दैट डोर्सल लिप formation, it influences further the epidermis, and finally the epidermis, it will form the neural tube and the another associated structures. Whereas in this secondary one, we will directly study about the development of various tissues and the organs, and as well as here we will see the mesenchymal interactions. ठीक है, यहाँ पे हम mostly mesenchymal interactions को study करते हैं. And then further आपका जो secondary induction है, it is divided into two, or under this we have two main interactions or two main inductions. That is, one is the regional specificity of induction, and second one we have the genetic specificity of the induction. ठीक है, तो ये दो आपके आ जाते हैं सेकेंडरी के अंदर.
right? So this is the firstly about the primary induction and then the secondary, right? ये हो गया आपका एक outline that what we are going to discuss in the videos. So firstly, now I am continuing with the first one, that is the primary embryonic induction. So for this we will see the slide. Okay. प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का ये जो फिनोमिना है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेंस स्पीमैन इन 1924 में, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन द एम्फीबियंस. और ये जो उन्होंने डिस्कवरी की थी ऑन दिस प्राइमरी इंडक्शन टॉपिक, फॉर दिस ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1935. नाउ द मेन आइडिया ऑफ दिस प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, क्या उन्होंने डिस्कवरी की थी? उन्होंने कहा कि ये जो डोर्सल लिप है ब्लास्टोपोर का, दिस डोर्सल लिप इज acting as the inducer. It induced to the formation of the nervous system. ठीक है, जो भी नर्वस टिश्यू बन रहा है, अभी हमने बोला ना कि प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या, इट इज जनरली रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब and the associated structures. So here these associated structure and the nervous tissue is forming with the help of the dorsal lip. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए थे, जहां पे उन्होंने क्या किया, ये जो डोर्सल लिप है इसको ट्रांसप्लांट करके देखा. ठीक है, उन्होंने मान लिया दो स्पीसीज ली, एक का डोर्सल लिप ट्रांसपोर्ट कर दिया in the blastula of another one. So he observed that in another species again it will lead to the formation of the nervous system and some associated structures. So that's why this is the reason कि जो भी आपके डोर्सल लिप वाली साइड के जो भी सेल्स थे, उन सेल्स को उन्होंने बोल दिया प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, because these primary organizer cells they helps in the formation of the dorsal lip, right? and यही dorsal lip आगे जाके आपका क्या बना रहे हैं, न्यूरल सिस्टम बना रहे हैं. So he used to call them as the primary organizer because this tissue was able to organize the whole embryo. इनसे पूरा हम embryo create कर सकते थे. So ये आपका primary embryonic induction में स्पीमैन का main idea था, ये उनका main conclusion था. Right? Now next we will see about the some works done by the Heinz Spearman. क्योंकि ये देखो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक कंक्लूजन बता दिया उनके पूरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे अंडर द प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. बट फर्स्टली उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए थे बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन. नाउ वन बाय वन we will discuss about the main experiments. We are not going to discuss all the experiments of the Heinz Spearman, but just important experiments and which is given in your the books also, right? हम वही अभी डिस्कस करेंगे. So firstly the experiment, first experiment Spearman का, that is for the demonstration of nuclear equivalence in the Newitt cleavage. ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर इक्विवेलेंस को बताया था. यहाँ पे मेन कंक्लूजन अभी मैं बताऊंगी, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया था in the Newitt egg, that is the Triturus tenuatus. So this is the species tenuatus and the genus is the Triturus, right? तो इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था. जस्ट उन्होंने क्या किया, सिंपली ही यूज्ड द फर्टिलाइज्ड एग, he used fertilized egg of this Newitt Triturus के उन्होंने fertilized egg ले लिए, इस तरह से ये ले लिया उन्होंने fertilized egg. ठीक है, इसका अब उन्होंने क्या किया, he used a hair. ठीक है, बेबी हेयर यूज किया उन्होंने, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि ये जो बेबी हेयर था दैट इज फ्रॉम हिज बेबी. ठीक है, जो उसकी डॉटर गर्ल थी उसी का उन्होंने हेयर लिया था, और उन्होंने इस हेयर को लेके क्या किया, इस फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ से सेंटर से पास करते हुए इसको यहाँ पे टाई कर दिया, ताकि जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक तरह से टाई करके बता दिया आपको. तो अब आपके पास कैसा बन गया, इस तरह से दो पार्ट बनते हुए दिखाई दिया आपको, और ये सेंटर में वो हेयर यूज किया गया है एज अ थ्रेड, और वी कैन यूज द वर्ड लाइगेचर ऑल्सो हियर.
राइट। अब इससे क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई था दैट गेट शिफ्टेड ओनली टू द वन साइड, और दूसरी साइड आपकी कैसे रह गई, दिस इज द नॉन न्यूक्लिएटेड साइड, राइट। देन फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो गई। नाउ दिस साइड न्यूक्लियाई दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, यहाँ पे जो नॉर्मल फर्टिलाइज रह गया उसके बाद जो क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होगा दैट विल स्टार्टेड हियर, एंड फाइनली वी रीच टू द 8 सेल स्टेज, राइट। तो 8 सेल स्टेज में आप देख सकते हो nuclei get divided, you can see the divided nuclei, and the another side you can see here still it will be the non nucleated side, क्योंकि जब उन्होंने थ्रेड से उसको टाई किया है, थ्रेड यहाँ पे क्या है, हेयर यूज किया है यहाँ पे, तो जब इस लेसो से इस लाइगेचर को यूज करके इसको टाई किया गया है, सो न्यूक्लियाई गेट शिफ्टेड टू ओनली वन साइड, तो इसी एक साइड पे यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। देन 16 सेल स्टेज पे जैसे हम पहुंचे, यू कैन सी हियर द फर्दर डिवाइडेड स्टेजेस, ठीक है। एंड एट दिस स्टेज ही ऑब्जर्व दैट क्या हुआ, एक न्यूक्लियाई आउट ऑफ दीज न्यूक्लियाई द वन न्यूक्लियाई get the chance to escape from this side and get shifted to the another side, that is the non nucleated side, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे आपकी 16 सेल स्टेज बन चुकी थी इस तरह से, तो यहाँ पे आपके सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, फ्रॉम दिस न्यूक्लियाई वन न्यूक्लियाई गेट शिफ्टेड टू दिस साइड लाइक दिस, राइट। और ये आपकी कौन सी साइड थी, यूजुअली नॉन न्यूक्लिएटेड साइड थी। ना नेक्स्ट आपका क्या हुआ, आफ्टर सम डेज 140 डेज के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही साइड पे एक प्रॉपर एम्ब्रियो बना हुआ था, ठीक है। ये जो ऑलरेडी जहाँ पे क्लीवेज हो रही थी इस तरफ तो आपका एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो ही रही है, बट जहाँ पे एक न्यूक्लियाई आपका एस्केप करके गया है यहाँ पे भी जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, बट जस्ट डिफरेंस क्या था, एक साइड वाला जो एम्ब्रियो था दैट इज मोर एडवांस्ड, और whereas to comparable to the next one that is the from the undivided region, ठीक है। तो ये इनका मेन कंक्लूजन यहाँ से क्या बनता है, that the early amphibian nuclei were genetically identical and that each cell was capable of giving rise to whole organism, ठीक है। कि ये सारे जो प्राइमरी जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सारे कैसे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और जैसे ही ये न्यूक्लियाई एक यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये एक अलग से ब्लास्टोमियर की तरह बन गया, ये एक सेल जो है इट इज स्टिल कैपेबल टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम कोई और न्यूक्लियाई किसी और सेल में शिफ्ट कर दें तो अगेन इट कैन ऑल्सो फॉर्म द embryo. So this is the conclusion of this experiment where he concluded that the each cell was able to give rise to entire animal as all the nuclei were genetically identical in this, right। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आ गया हेंस स्पीमैन का। Now we will see one more thing, ये उन्होंने कंक्लूड तो कर दिया बट इसमें एक प्रॉब्लम आई कि जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बाय यूजिंग सम अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया, राइट, बट इन दिस सिमिलर एक्सपेरिमेंट ही गेट डिफरेंट आउटकम्स, यानी कि रिजल्ट्स अलग आए। तो क्या रीजन थे रिजल्ट्स अलग आने के, उन्होंने जिस क्या चेंजेस किए थे, अभी जो हम बोल रहे हैं कि दैट द कॉन्स्ट्रिक्शन वाज मेड, कॉन्स्ट्रिक्शन वाज मेड का मतलब कि इस तरह से एग को लेके बीच में से उसको डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट दीज टू सेल्स, राइट। उन्होंने जिस क्या चेंज किया कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना रहे हैं हम, जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स इस तरह से लेंथ वाइज हम इसे टाई अप कर रहे हैं, he makes sure that this constriction should be made perpendicular to the plane of first cleavage, ठीक है। it was the first main change कि उन्होंने बोला कि जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज होगी तो ये इंश्योर किया जाए कि जो आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, जैसे आप टाई अप कर रहे हो, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट क्लीवेज प्लेन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये चेंज की वजह से हमारे पास रेदर देन राइट एंड लेफ्ट साइड वी गॉट द डोर्सल साइड, डोर्सल रीजन एंड द वेंट्रल रीजन, ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिला। इस
प्रीवियस वन केस में तो आप देख सकते हो ना, हम लेंथ वाइज हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास क्या मिल रहा था, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड का सेल मिल रहा था, ठीक है, वन विल बी द लेफ्ट साइड और वन विल बी द राइट साइड, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही हमने ये चेंजेस लाए कि हमने इसको परपेंडिकुलर रख दिया अलोंग द फर्स्ट क्लीवेज, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड वी गॉट द डोर्सल एंड द वेंट्रल साइड, ठीक है। इस तरह से ये आपकी डोर्सल होगी और इससे ऑपोजिट जो होगी आपकी वेंट्रल साइड होगी। सो हियर ही फाउंड दैट द जो आपका डोर्सल साइड वाला एरिया है, ओनली दिस डोर्सल साइड, न्यूक्लियाई तो नॉर्मली दोनों पे डिवाइड करते रहे, डोर्सल साइड पे न्यूक्लियाई है वो भी डिवाइड किए, वेंट्रल साइड के न्यूक्लियाई थे वो भी डिवाइड किए, बट ही ऑब्जर्व दैट द ओनली डोर्सल साइड इट विल फॉर्म द फ्यूचर एम्ब्रियो, ठीक है। जो फ्यूचर एम्ब्रियो था वो किससे बना, सिर्फ डोर्सल साइड से बना। और जो आपकी वेंट्रल साइड थी, दिस वेंट्रल साइड प्रोड्यूस्ड एन अनऑर्गेनाइज्ड, it produces an unorganized tissue mass of ventral cell, tissue mass of ventral cells, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जर्वेशन थी और इस अनऑर्गेनाइज्ड मास के लिए वर्ड यूज किए गए, दैट इज द बैलिस्टिक और बेली पीस वर्ड यूज किया गया, एंड इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया दैट इज बोस्टक, ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। और ये जो वर्ड है बोस्टक और द बेली पीस, एग्जैक्टली ये क्या है, दिस इज द ball of the epidermal cells along with the some amount of the blood and with the mesenchymal and the gut cell, ठीक है, यानी कि कुछ मेसोडर्म के सेल थे इसमें, कुछ एंडोडर्म के सेल, एंड along with that we have some amount of the blood mixed with this, but इसमें कोई भी dorsal structure नहीं था, there is no dorsal structure in this, right? सो दिस इज द मेन कंक्लूजन कि जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जस्ट सिर्फ उन्होंने डिफरेंस क्या लाया कि जो वो कॉन्स्ट्रक्शन बना रहे थे दैट ही यूज टू मेड परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन क्लीवेज, राइट, जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट और साइड राइट साइड आने के बजाय कौन सी साइड आई, डोर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड, and this dorsal side only leads to the formation of the future embryo, whereas the ventral side it forms the unorganized tissue mass of the ventral cell, जिसको हमने unorganized mass के लिए word use कर दिया belly piece और Bowstrach, और इस piece में कोई भी dorsal structure नहीं था, किसी भी तरह के nervous system या notochord और somites से related कुछ भी यहाँ पे present नहीं था। Now the question is, what are the main reasons that two experiments shows these huge variations, ठीक है, कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो ये इतनी ज्यादा चेंजेस क्यों आए, तो मेन आंसर क्या है इसका, जस्ट वी मेड द चेंजेस ड्यूरिंग द दिस कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन, हमने ये मेन चेंज किया जिसकी वजह से हमारे पास दोनों ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आउटकम्स आई। So now next we will continue with the Spearman's second experiment. So in the Spearman's second experiment we will see the asymmetry in the amphibians, वो भी ये जो अभी मैंने आपको बताया है यही बेसिक आइडिया वहाँ पे यूज किया गया है। So now we will explain that to you. So here we have the asymmetry in the amphibian egg, ये स्पीमेन का सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अगेन ही यूज एम्फीबियन एग, ठीक है, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एम्फीबियन एग, इसी को उन्होंने दोबारा से यूज किया, फर्टिलाइज्ड एम्फीबियन एग, राइट। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एम्फीबियन एग था, जब एम्फीबियन एग की फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है, काफी चेंजेस होते रहते हैं, काफी मूवमेंट्स होते रहते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन देयर साइटोप्लाज्म, एंड ड्यू टू दीज मूवमेंट्स देयर विल बी द एक्सपोजर ऑफ द ग्रे क्रीसेंट शेप एरिया, ठीक है, क्या एक्सपोज हो जाता है इनके साइटोप्लाज्म में,
there will be exposure of gray crescent shaped area, right? और ये जो ग्रे क्रिसेंट शेप्ड एरिया है इन द साइटोप्लाज्म, दिस विल बी प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। और एग्जैक्टली ये क्या होता है, दिस इज यू कैन कंपेयर इट विद द फ्यूचर डोर्सल साइड, ठीक है। ये इन फ्यूचर क्या बनाती है आपकी फ्यूचर डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो। So this is the gray crescent area which is further forming the future dorsal side and it is just present opposite to the point of the sperm entry. अब जैसे ही आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ठीक है, ये आपका फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे लिया है, कुछ मूवमेंट्स हुई, मूवमेंट्स की वजह से आप देख सकते हो ये नीचे ये इस तरह से ग्रे क्रिसेंट एरिया बनाया है, यानी कि इस तरह से कुछ आपको एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज हुई, फर्स्ट क्लीवेज में हमारे पास ये दो केसेस लिए हैं, आई एम जस्ट फर्स्टली डिस्क्राइबिंग अबाउट द फर्स्ट केस। जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज हुई, लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज है एक तरह से, ये आप देख सकते हो, दिस सेल गेट डिवाइडेड इनटू द टू फर्दर सेल्स, डॉटर सेल्स, और वी कैन से इनटू द टू ब्लास्टोमियर, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर से डिवाइड हो रहा है, ये एक साइड का ब्लास्टोमियर, दिस इज द सेकेंड ब्लास्टोमियर, राइट। अब ये जैसे डिवीजन हो रही है, इसी के साथ ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है इट इज ऑल्सो गेटिंग इक्वली डिवाइडेड इनटू बोथ द ब्लास्टोमियर। आधा ग्रे क्रिसेंट एरिया इस तरफ आ गया, यू कैन सी हियर, और आधा यहाँ पे आ गया, राइट। Now in future when there will be the separation of the blastomeres, it will lead to the normal development. मान लो ये वाला ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गया तो इसने ये नॉर्मल डेवलपमेंट हुई इससे, और ये वाला ब्लास्टोमियर सेपरेट हुआ तो इससे भी क्या हुई, नॉर्मल डेवलपमेंट। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट एरिया जो था इक्वली डिवाइड हो गया है इनटू द टू ब्लास्टोमियर्स। दिस इज द केस वन। अब केस टू देखते हैं हम। केस टू में हमारे पास क्या है, सेम वे वी हैव दिस फर्टिलाइज्ड एग, देयर विल बी सम मूवमेंट्स ड्यू टू दैट द ग्रे क्रिसेंट एरिया गेट एक्सपोज्ड, but now here after the first cleavage you can see that the gray crescent area gets shifted or it is present only on the one side or only in the one blastomer। जो दूसरी साइड है, दूसरा ब्लास्टोमियर है, there is no gray crescent area in this, right। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जिस साइड पे ग्रे क्रिसेंट एरिया है, मींस जिसने फ्यूचर डोर्सल साइड बनाने की कैपेबिलिटी है, दैट विल लीड टू द नॉर्मल डेवलपमेंट। और जो दूसरी साइड का जिसके पास ग्रे क्रिसेंट एरिया नहीं है, उसने क्या बना दिया, आपका बेली पीस बता दिया, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेली पीस एंड हियर देयर आर नो डोर्सल स्ट्रक्चर इन दिस बेली पीस। कोई भी नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन या नर्वस टिश्यू फॉर्मेशन या कोई भी डोर्सल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। So this is the asymmetry in the amphibian egg and from this experiment we can conclude that कि ये जो normal development हो रही है, for this normal development we require the gray crescent area, ठीक है। और उस ग्रे क्रिसेंट एरिया में क्या है, देयर इज समथिंग इन दिस रीजन ऑफ द ग्रे क्रिसेंट एरिया विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तभी हम नोट कर सकते हैं ना कि जिस साइड ये ग्रे क्रिसेंट एरिया गया है वहां पे तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। इट मीन्स दैट कि नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हमें ग्रे क्रिसेंट एरिया चाहिए, और उस ग्रे क्रिसेंट एरिया में स्पेसिफिक कुछ या तो सिग्नल्स प्रेजेंट है या कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है विच हेल्पिंग दिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर एम्ब्रियो, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट that the what role did it play in the normal development, ठीक है। तो इसके ही एक्सपेरिमेंट में अब हम ये नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ये जो अभी हमने बात की दैट दिस इज द ग्रे क्रिसेंट एरिया एंड ऑल, अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या मेन इनको आइडिया मिले फर्दर इन एक्सपेरिमेंट से। So Spearman concluded that with the help of the fate maps, जब उन्होंने फेट मैप्स को अच्छे से स्टडी किया, फेट मैप ऑफ द फ्रॉग एंड ऑल द एम्फीबियंस, उन्होंने देखा कि इन फेट मैप्स में उनको ग्रे क्रिसेंट एरिया देखने को मिला एंड ग्रे क्रिसेंट एरिया गिव राइज टू दोज सेल्स
ये सारे के सारे ग्रे क्रिसेंट एरिया वाला पोर्शन जो है, ये ऐसे सेल्स बना रहा है जो फर्दर क्या बनाता है, आपका डोर्सल लिप बनाता है। ठीक है, तो आगे ना इंपॉर्टेंट बात वहीं पे कि डोर्सल लिप को हमने शुरू में ही रिलेट कर दिया था, दैट डोर्सल लिप हेल्प इन द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। तो यहाँ से मेन बेसिक उनको आइडिया मिल गया कि एक स्पेसिफिक ग्रे क्रिसेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फर्दर जब उन्होंने उनकी स्टडी की तो उनको पता चला कि जब भी फेट मैप्स हम करते हैं वहां पे ये ग्रे क्रिसेंट एरिया प्रेजेंट होता है, और ये ग्रे क्रिसेंट एरिया क्या बनाते हैं, इट विल फॉर्म दोज सेल्स, they will lead to the formation of the dorsal lip of the blastopore। ठीक है, और जो भी dorsal lip के cells होते हैं, these are the committed cells, and in the process of the gastrulation they will lead to the formation of the neural tube। ठीक है, so these are the committed cells for the neural tube formation in the gastrulation process, and it will lead to the formation of also the head endomesoderm and as well as the formation of the notochord, right? So from here he get one more idea। ठीक है, इस इन दोनों चीजों की, ये तो एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और ये जो अभी मैंने आपको चीजें बताई ग्रे क्रिसेंट एरिया और फेट मैप को रिलेट करके, इन दोनों को रिलेट करके उन्होंने एक कंक्लूजन पे वो आए, एंड द कंक्लूजन इज दैट कि जो भी फ्यूचर amphibian development है, all the future amphibian development, it is based on two factors। ठीक है, दो मेन फैक्टर्स जो हैं जिसपे ये बेस्ड है। फर्स्ट है दैट इज द इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला कि क्या मेन चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल्स that are arranged during the gastrulation। gastrulation के टाइम हम देखते हैं ना काफी चेंजेस होती हैं, सेल्स इंटरैक्ट करते हैं, कुछ मूव भी करते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड एंड आउटर साइड। सो ऑल दोज इंट्रैक्शंस दे आर वेरी नेसेसरी फॉर फ्यूचर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला दैट चेंज इन द सेल पोटेंसी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज चेंज इन द सेल पोटेंसी। सो अगेन जब भी गैस्ट्रुलेशन होती है उस टाइम हम देखते हैं कि काफ़ी सेल्स की पोटेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, अर्लियर स्टेजेस पे उनकी फेट जो है वो डिटरमिन नहीं होती है, लेटर स्टेज पे उनकी फेट डिटरमिन्ड हो जाती है। तो ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं सेल पोटेंसी में और जो भी इंट्रैक्शंस हैं सेल्स की during the gastrulation, these two factors are very very important for the future amphibian development। Then later on in 1918 में स्पीमैन में दोबारा से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एंड विद दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट द बोथ दीज स्टेटमेंट्स और बोथ दीज फैक्टर्स दीज आर ट्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के दोनों फैक्टर उन्होंने जस्टिफाई कर दिए विद हिज एक्सपेरिमेंट दैट द इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल्स इन gastrulation as well as the changes in the cell potency during the gastrulation both are important for the future amphibian development। Now we will see the experiment। क्या उन्होंने experiment किए? So first experiment जो यहाँ पे है हमारे पास, that is the determination of ectoderm during the nuate gastrulation। तो इस experiment पे उन्होंने क्या किया, he usually exchanges the tissues between the gastrula of two species। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो nuate species ले ली, he used the two species, right? first species का नाम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, that is the Trituris tenuatus, जो अभी हमने पहले भी लिया था, that is Trituris tenuatus, the same one। and second species उन्होंने ले ली, that is the again Trituris, genus will be the same, species is Cristatus। ठीक है, ये उन्होंने second species ले ली। ठीक है, तो दो स्पीसीज ले ली। अब इन दोनों स्पीसीज के उन्होंने कुछ टिश्यूज को एक्सचेंज किया था बिटवीन देयर गैस्ट्रुला। फर्दर जब उन्होंने एम्ब्रियो को, इन दोनों के एम्ब्रियो को स्टडी किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टीनिएटिस का एम्ब्रियो होता है दैट इज बेसिकली डार्कली पिगमेंटेड।
ठीक है, दिस वन इज द डार्कली पिगमेंटेड, एंड फॉर द पिस्टैटस ही ऑब्जर्व दैट दिस वन इज द नॉन पिगमेंटेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें थोड़ी हेल्प हो गई टू डिफ्रेंशिएट बोथ द एम्ब्रियो। ठीक है, जब उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, एक टिश्यू को उठा के दूसरे के गैस्ट्रुला में इम्प्लांट कर रहे हैं, सो देयर पिगमेंटेशन बेसिकली हेल्प्स देम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू टिश्यूज की कौन सा किसका टिश्यू है। राइट, अब एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, क्या किया, गैस्ट्रुला लिया। ठीक है, अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे ये एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म किया। तो अर्ली गैस्ट्रुला ले लिया उन्होंने, पहले हम ले लेते हैं जैसे फर्स्ट स्पीसीज का टीनियाटस को उन्होंने ले लिया। ठीक है, मैं सिर्फ स्पीसीज का नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। टीनियाटस का उन्होंने अर्ली गैस्ट्रुला ले लिया। इस गैस्ट्रुला का उन्होंने जो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल रीजन था उसको वहां से रिमूव कर दिया। ही यूज द रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो रीजन जो इन फ्यूचर एपिडर्मिस बनाने वाला था, वो रीजन उन्होंने यहां से रिमूव कर दिया। एंड ही यूज टू ट्रांसप्लांटेशन, इसको निकाल के उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांटेड इनटू, किसके अंदर ट्रांसप्लांट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, अर्ली गैस्ट्रुला लिया, अर्ली गैस्ट्रुला ऑफ सेकेंड स्पीसीज दैट इज इनटू द क्रिस्टेटस स्पीसीज। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, पहली स्पीसीज का उन्होंने एक टिश्यू निकाल लिया। टिश्यू कौन सा था, रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल वाला पार्ट, ये निकाल के डाल दिया उन्होंने दूसरे गैस्ट्रुला में, दैट इज द क्रिस्टेटस में, एंड ही इज यूजिंग द अर्ली गैस्ट्रुला ऑफ बोथ द स्पीसीज। Now, what will happen? He noticed that at a region where neural tissue normally formed, transplanted cells give rise to the neural tissue. ठीक है, ये इन्होंने जो रीजन है ऑफ प्रोस्पेक्टेड एपिडर्मल सेल अर्ली गैस्ट्रुला में कहाँ पे डाला था इन्होंने, ही बेसिकली इंट्रोड्यूस इनटू द न्यूरल टिश्यू साइड, जहाँ पे आपके न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं ना, वहां पे इन्होंने डाल दिया था। ठीक है, तो उन्होंने नोटिस क्या किया कि फाइनली क्या हुआ, ये जो ट्रांसप्लांटेड सेल हैं इन्होंने भी यहाँ पे न्यूरल टिश्यू ही बनाने शुरू कर दिए। इट राइजेस टू द न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन। राइट, अब देखो सेल्स कौन से थे, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल थे, उन्हें यूजुअली क्या बनाना चाहिए था, एपिडर्मिस बनाना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द एपिडर्मिस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, किस साइट पे वो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, एंड दे गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, एंड उन्होंने न्यूरल टिश्यू बनाने शुरू कर दिया है। इंस्टेड ऑफ transplanted into the epidermis side, he used to transplant them into the neural tissue side, और उसी न्यूरल टिश्यू साइड के हिसाब से, इस लोकेशन के हिसाब से ये ट्रांसप्लांटेड सेल्स ने भी दोबारा से न्यूरल टिश्यू ही बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, सो सिमिलरली उन्होंने क्या किया, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, सेम वे में अर्ली गैस्ट्रुला में ही न्यूरल टिश्यू, इंस्टेड ऑफ दिस प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल, न्यूरल टिश्यू लिया। न्यूरल टिश्यू को यहाँ से उठा के, यू कैन सी हियर इन द अर्ली गैस्ट्रुला, न्यूरल एक्टोडर्म को यहाँ से उठा के उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया, एंड ही ट्रांसप्लांटेड देम इनटू द दिस प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस साइड। ठीक है, जिस साइड ने एपिडर्मिस बनाना था वहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट हियर दे स्टार्ट फॉर्मिंग द दिस न्यूरल टिश्यू बिकेम द एपिडर्मल। तो इस एपिडर्मस वाली साइड पे ये हमने ऐड किए हैं, तो इन न्यूरल टिश्यूज ने यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से एपिडर्मिस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इट मीन्स दैट the cells of early nuate gastrula they exhibit the conditional development। ठीक है, ये कैसे डेवलपमेंट एग्जिबिट कर रहे हैं, कंडीशनल डेवलपमेंट, यानी कि लोकेशन के हिसाब से इनकी फेट चेंज हो रही है। बेसिक उनका काम था एपिडर्मिस बनाना या न्यूरल टिश्यू बनाना, बट जिस तरह की लोकेशन में वो ट्रांसप्लांट हुए उनकी फेट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। सो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल डेवलपमेंट या रेगुलेटिव डेवलपमेंट, वेयर देयर अल्टीमेट फेट डिपेंड्स ऑन देयर लोकेशन इन द एम्ब्रियो।
So this is the first part of the experiment where he used the early gastrula, right? देन सेम चीज उन्होंने परफॉर्म की, सेम यही स्पीसीज रखी, ठीक है, बट जस्ट द चेंजेस आर, यहाँ पे जो अर्ली गैस्ट्रुला लिया है इसकी जगह अब उन्होंने क्या ले लिया, लेट गैस्ट्रुला ले लिया, यानी कि थोड़ा सा लेटर स्टेजेस का गैस्ट्रुला लिया। दोबारा से उन्होंने सेम चीज परफॉर्म की, दैट द he used the region of the prospective epidermal cells and he used to transplant them into the late gastrula. Here now we will write that this is the late gastrula में उन्होंने डाल दिया, कौन सी जगह पे, न्यूरल टिश्यू पे। बट नाउ इंस्टेड of getting changed according to their location, उन्होंने अब यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज बनाने की बजाय यहाँ पे जो भी एपिडर्मल पार्ट इन्होंने बनाना था, ही एपिडर्मिस राइज टू एपिडर्मिस, तो यही इन्होंने बनाया। मीन्स लेट गैस्ट्रुला में अकॉर्डिंग टू लोकेशन कोई भी चेंजेस नहीं आए, इनका फेट डिटरमिन रहा। जिस चीज ने जिस पार्ट ने जो ऑलरेडी जिसका फेट डिसाइड था कि ये एपिडर्मिस बनाएगा, वो लेट गैस्ट्रुला में आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन चाहे किसी भी एरिया में से ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, देयर फेट विल बी फिक्स, दे विल फॉर्म ओनली दैट पर्टिकुलर part instead of the changes in the early gastrula. So you can see here also late gastrula में यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, that presumptive neural ectoderm ले लिया गया एक गैस्ट्रुला से, दूसरे गैस्ट्रुला के इसको एपिडर्मिस वाली साइड पे ट्रांसप्लांट कर दिया। Now instead of forming the epidermis according to the location, their fate will remain fixed। इन्होंने इस साइड पे भी न्यूरल प्लेट टिश्यू फॉर्म किया, ठीक है। पिछले में तो चेंज हो जा रहा था, एपिडर्मिस बनाने शुरू हो जा रहे थे, बट इन द लेट गैस्ट्रुला फेट रिमेन फिक्स, हियर दे अगेन फॉर्म द न्यूरल प्लेट। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। दिस टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, वेयर द फेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड and there are no changes according to the location of the transplanted part. So the main conclusion of this experiment is that within the time separating early and late gastrulation, the potencies of group of cells had become restricted, ठीक है, potencies restricted हो रही हैं to their eventual path of differentiation। तो पीछे जो मैंने दो फैक्टर्स बताए थे उस पे आओ। एक फैक्टर आपको यही बताया था कि जो सेल पोटेंसी है उस पे एम्फीबियन की डेवलपमेंट रिलाई करेगी। तो अभी हमने देख लिया कि सेल पोटेंसी देखो अर्ली गैस्ट्रुला में और थी, लेट गैस्ट्रुला में सेल पोटेंसी चेंज हो रही है, मींस दिस सेल पोटेंसी इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द दिस एम्फीबियन डेवलपमेंट। दूसरा था नॉर्मल सेल इंट्रैक्शंस, तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑल द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। So these are the main experiments performed by the Hans Spearman and his workers. So that's all for this video. In next video we will continue with the primary embryonic induction. We will see the how the organizers are formed and what are the molecular aspects related with the formation of the organizer. So stay tuned for more videos and please subscribe and share the channel. Thank you.